السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر، آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ولاگ۔ بہت ہی پیارا چینل ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے ہمارا ایک ایک ویڈیو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا، بیل آئیکن کو پریس کر لینا اور اس ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک کر کے پیارا سا کمنٹ کرنا اور اس ویڈیو کو شیئر کر دینا۔ آج اتنی بہترین میں جانکاری آپ کو دینے والا ہوں کہ آپ تعجب میں پڑ جائیں گے۔ جیسے کہ اگر کسی نے کسی پر جادو کیا ہے اور اس کا ہم پتہ لگانے کے لیے بے چین ہے کہ کیسے ہم پتہ کریں کہ مطلب کسی نے جادو کیا ہے یا پھر جسمانی مرض ہے، کیا کریں کیا نہیں کریں۔ ڈاکٹر سے دوا کراتے کراتے ہم پریشان ہو چکے ہیں، سمجھے، اور ویسے بھی پتہ نہیں چل ڈاکٹر سے دوا ہم کھا رہے ہیں لیکن اثر ہی نہیں کر رہے، آخرکار اس کی کیا وجہ ہے۔ تو اسی اسنا کے لیے اور اسی معاملات کے لیے میں آج آپ کو بہت ہی پیارا ایک نقش آپ کو بتاؤں گا، جو کہ اس نقش کو آپ کو اپنے کام میں لانا ہوگا۔ یعنی کہ امتحان آپ کو لینا ہے کہ کس طریقے سے مطلب جو ہے ہم پتہ کر پائیں گے کہ یہ آسیب یعنی کسی نے جادو کیا ہے، یہ آسیب ہے یا پھر جسمانی مرض ہے۔ تو مریض کے ہاتھ پر اس نقش کو لکھ لینا ہے، مریض کے ہاتھ پر، جو میں اس بورڈ پہ انشاءاللہ تعالی میں نقش آپ کو بنا کے بتاؤں گا۔ اس نقش کو اپنے ہاتھوں سے مریض کے ہاتھ پر لکھنا ہے اور مریض کے ہاتھ پر لکھنے کے بعد میں جب آپ نقش لکھ دیں تو لکھنے کے بعد اس مریض سے یہ پوچھیں کہ اپنی آنکھوں سے اس نقش کو دیکھو، یہ نقش کیسا دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ نقش کیسا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر مریض یہ کہے کہ یہ سرخ دکھائی دے رہا ہے تو سمجھ لینا آسیب ہے، اور اگر مریض یہ کہے کہ سرخ نہیں ہے تو پھر سوچ لینا کہ مرض ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، کہ جسمانی مرض ہے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل پتہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں بورڈ کی اسکرین پر اور آپ کو سمجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے ایک گھیرا مطلب جو ہے لکھ لینا ہے ایسے کر کے، ٹھیک ہے، ایسے کر کے آپ قلم سے مطلب جو ہے چھوٹے اس میں، کیونکہ ہاتھ اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے نا، میں صرف ایگزامپل آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو امتحان لینا ہے کہ جادو ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اسی طریقے سے آپ مریض کے ہاتھ پر اس طریقے سے یہ بنا دیں اور اس کے بعد سب سے پہلا یہاں پر لفظ جو لکھنا ہے وہ سین لکھنا ہے۔ قلم بھی فیل ہو رہا ہے، یہ سین لکھنا ہے، ٹھیک ہے، سین لکھ دیا۔ اس کے بعد ہم کو سواد لکھنا ہے، ٹھیک ہے، سواد لکھ دیا۔ اس کے بعد ہم کو توئے لکھنا ہے، یہ توئے لکھ دیا ہم نے، توئے لکھ دیا۔ اس کے بعد ہم کو عین لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم کو یہ لکھنا ہے، یہ چھوٹی، یہ ہو گیا 1 2 3 4 5، یہ 5 حرف پہلی لائن میں آ گیا۔ اس کے بعد دوسری لائن میں ہم کو پھر سے یہاں پر سواد لکھنا ہے۔ دھیان سے دوستو، دھیان سے دیکھنا ہے، اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے۔ سواد ہو گیا، اس کے بعد یہاں پر توئے لکھ دیجئے، توئے ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پر عین کر دیتے ہیں، عین ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، پھر یہاں پر کر دیتے ہیں سین، ٹھیک ہے، 2 لائنیں ہو گئی۔ اس کے بعد پھر یہاں پر ہم توئے کرتے ہیں تیسری لائن میں، توئے ہو گیا۔ اس کے بعد عین، عین ہو گیا، ٹھیک ہے، عین ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کرتے ہیں، یہاں پر یہ لکھتے ہیں، اس کے بعد سین لکھتے ہیں اور اس کے بعد سواد لکھتے ہیں۔ 3 لائنیں ہو گئی۔ اب چوتھی لائن جو ہے پھر ہم کو چھوٹی یہ لکھنا ہے، چھوٹی یہ، پھر سین، یہ سین ہو گیا۔ اس کے بعد سواد، سواد ہو گیا۔ اس کے بعد توئے، اس کے بعد یہاں پر عین کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نقش آپ کا مکمل بن کے تیار ہو چکا ہے۔ اور اوپر لکھ دیں گے ہاتھ کے اوپر، یہ جو ہم نے لائن کھینچی ہے اس کے اوپر یہاں پر 786 کے عدد بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ کو مکمل یہ نقش مریض کے ہاتھ پر لکھنا ہے دوستو۔ مریض کے ہاتھ پر لکھ دیں گے اور لکھنے کے بعد میں مریض کو اس طریقے سے آپ کو دکھانا ہے کہ دیکھو یہ کون سے کلر کا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر واقعی میں سرخ رنگ دکھائی دے رہا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ کوئی دشمن لگا ہوا ہے جادو کرنے کے لیے اور وہ جادو کر رہا ہے۔ تو پھر کسی اچھے عامل سے آپ روحانی علاج کرائیں، اور اگر سرخ رنگ دکھائی نہ دے تو پھر کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ لے کے اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں۔ یہی مشورہ میرا آپ کو رہتا ہے۔ اور بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی عامل کے پاس اگر نہیں بھی جا رہے ہیں آپ تو پھر میرے چینل پہ آپ جائیے، سجاد نظامی ولاگ پہ یا سجاد نظامی ورلڈ پہ، وہاں پر آپ کو ایسے وظیفے نظر آئیں گے، ایسے وظیفے مکمل طریقے کے ساتھ
इंशाअल्लाह अगर करने के साथ साथ और मरीज के ऊपर दम करते हैं, या फिर मरीज को पानी पर दम करके पिलाते हैं, या फिर मरीज के ऊपर से सूखी मिर्चों को उतार कर जलाते हैं, या फिर काली मिर्च या फिर लौंग उतार कर जलाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला 21 से 40 दिन में घर पे ही आप अपने बच्चे को या अपने भाई को या अपने वालिद साहब को या अपनी बहन को आप ठीक कर सकते हैं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आज यही सोचा कि बहुत सारी चीजें लोग देते हैं, मैं आज कुछ नया आपको दे दूं। अगर किसी पर वाकई में जादू या असरात लगता हो या असीर या सहर लगता हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। मरीज के हथेली पे इस तरीके से ये लाइन पूरा खाना बना लेना है। उसके बाद ये सीन तो स्वाद तोय आयन, ये फिर दूसरी लाइन में स्वाद तोय आयन ये सीन, फिर तीसरी लाइन में तोय आयन ये सीन स्वाद, फिर चौथी लाइन में ये सीन स्वाद तोय आयन। ये इस तरीके से भर लेना, मरीज को दिखा देना है। अगर कलर वो चेंज बताता है तो समझ जाइएगा कि जादू किया हुआ है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके की वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो दोनों से नवाज देना, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी व्लॉग, आपका अपना ही चैनल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं रशीद अख्तर, आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी व्लॉग। बहुत ही प्यारा चैनल है। अगर आपको पसंद आए हमारा एक एक वीडियो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर कर देना। आज इतनी बेहतरीन मैं जानकारी आपको देने वाला हूं कि आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। जैसे कि अगर किसी ने किसी पर जादू किया है और उसका हम पता लगाने के लिए बेचैन है कि कैसे हम पता करें कि मतलब किसी ने जादू किया है या फिर जिस्मानी मर्ज है, क्या करें क्या नहीं करें। डॉक्टर से दवा कराते कराते हम परेशान हो चुके हैं, समझे, और वैसे भी पता नहीं चल डॉक्टर से दवा हम खा रहे हैं लेकिन असर ही नहीं कर रही। आखिरकार इसकी क्या वजह है? तो इसी असना के लिए और इसी मामलात के लिए मैं आज आपको बहुत ही प्यारा एक नक्श आपको बताऊंगा, जो कि उस नक्श को आपको अपने काम में लाना होगा। यानी कि इम्तहान आपको लेना है कि किस तरीके से मतलब जो है हम पता कर पाएंगे कि ये आसेब यानी किसी ने जादू किया है, ये आसेब है या फिर जिस्मानी मर्ज है। तो मरीज के हाथ पर इस नक्श को लिख लेना है। मरीज के हाथ पर जो मैं इस बोर्ड पे इंशाअल्लाह ताला मैं नक्श आपको बना के बताऊंगा, उस नक्श को अपने हाथों से मरीज के हाथ पर लिखना है। और मरीज के हाथ पर लिखने के बाद में जब आप नक्श लिख दें तो लिखने के बाद उस मरीज से ये पूछे कि अपनी आंखों से इस नक्श को देखो, ये रंग, ये नक्श कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये नक्श कैसा दिखाई दे रहा है। अगर मरीज ये कहे कि ये सुर्ख दिखाई दे रहा है तो समझ लेना आसेब है, और अगर मरीज ये कहे कि सुर्ख नहीं है तो फिर सोच लेना कि मर्ज है। समझ रहे हैं आप कि जिस्मानी मर्ज है। इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला आप बिल्कुल बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो आइए इंशाअल्लाह ताला चलते हैं बोर्ड की स्क्रीन पर और आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है एक घेरा मतलब जो है लिख लेना है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके आप कलम से मतलब जो है छोटे उसमें क्योंकि हाथ इतना बड़ा नहीं होता है ना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको इम्तहान लेना है कि जादू है या क्या है क्या नहीं है, तो इसी तरीके से आप मरीज के हाथ पर इस तरीके से ये बना दें और उसके बाद सबसे पहला यहाँ पर लफ्ज जो लिखना है वो सीन लिखना है। कलम भी फेल हो रहा है, ये सीन लिखना है। ठीक है, सीन लिख दिया। उसके बाद हमको स्वाद लिखना है। ठीक है, स्वाद लिख दिया। उसके बाद हमको तोय लिखना है। ये तोय लिख दिया हमने, तोय लिख दिया। उसके बाद हमको आयन लिखना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमको ये लिखना है, ये छोटी ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 हरफ पहली लाइन में आ गया। उसके बाद दूसरी लाइन में हमको फिर से यहां पर स्वाद लिखना है। ध्यान से दोस्तों, ध्यान से देखना है इसको, इसी तरीके से करना है। स्वाद हो गया। उसके बाद यहां पर तोय लिख दीजिए, तोय हो गया। उसके बाद यहां पर आयन कर देते हैं, आयन हो गया। उसके बाद यहां पर ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, फिर यहां पर कर देते हैं सीन। ठीक है, 2 लाइनें हो गई। उसके बाद फिर यहां पर हम तोय करते हैं तीसरी लाइन में, तोय हो गया। उसके बाद आयन, आयन हो गया। ठीक है, आयन हो गया। उसके बाद ये करते हैं, यहां पर ये लिखते हैं। उसके बाद सीन लिखते हैं और उसके बाद स्वाद लिखते हैं। 3 लाइनें हो गई। अब चौथी लाइन जो है फिर हमको छोटी ये लिखना है।
छोटी ये, फिर सीन, ये सीन हो गया, उसके बाद स्वाद, स्वाद हो गया, उसके बाद तोय, उसके बाद यहां पर आयन कर देना है। ठीक है, ये नक्श आपका मुकम्मल बनके तैयार हो चुका है। और ऊपर लिख देंगे हाथ के ऊपर, ये जो हमने लाइन खींची है इसके ऊपर यहां पर 786 के अदद बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको मुकम्मल ये नक्श मरीज के हाथ पर लिखना है दोस्तों। मरीज के हाथ पर लिख देंगे और लिखने के बाद में मरीज को इस तरीके से आपको दिखाना है कि देखो ये कौन से कलर का दिखाई दे रहा है। अगर वाकई में सुर्ख रंग दिखाई दे रहा है तो समझ जाइएगा कि कोई दुश्मन लगा हुआ है जादू करने के लिए और वो जादू कर रहा है। तो फिर किसी अच्छे आमिल से आप रूहानी इलाज कराएं, और अगर सुर्ख रंग दिखाई ना दे तो फिर किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा लेके उसका ट्रीटमेंट कराएं। यही मशवरा मेरा आपको रहता है। और भी मैं तो ये कहता हूं कि किसी आमिर के पास अगर नहीं भी जा रहे हैं आप, तो फिर मेरे चैनल पे आप जाइए, सज्जाद निजामी ब्लॉग पे या सज्जाद निजामी वर्ल्ड पे। वहां पर आपको ऐसे ऐसे वजीफे नजर आएंगे, ऐसे ऐसे वजीफे मुकम्मल तरीके के साथ इंशाअल्लाह अगर करने के साथ साथ, और मरीज के ऊपर दम करते हैं या फिर मरीज को पानी पर दम करके पिलाते हैं या फिर मरीज के ऊपर से सूखी मिर्चों को उतार कर जलाते हैं या फिर काली मिर्च या फिर लौंग उतार कर जलाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला 21 से 40 दिन में घर पे ही आप अपने बच्चे को या अपने भाई को या अपने वालिद साहब को या अपनी बहन को आप ठीक कर सकते हैं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आज यही सोचा कि बहुत सारी चीजें लोग देते हैं, मैं आज कुछ नया आपको दे दूं। अगर किसी पर वाकई में जादू या असरात लगता हो या असीर या सहर लगता हो तो आपको कुछ नहीं करना है। मरीज के हथेली पे इस तरीके से ये लाइन पूरा खाना बना लेना है। उसके बाद ये सीन, तो स्वाद, तोय, आयन, ये, फिर दूसरी लाइन में स्वाद, तोय, आयन, ये, सीन, फिर तीसरी लाइन में तोय, आयन, ये, सीन, स्वाद, फिर चौथी लाइन में ये, सीन, स्वाद, तोय, आयन। ये इस तरीके से भर लेना, मरीज को दिखा देना है। अगर कलर वो चेंज बताता है तो समझ जाइएगा कि जादू किया हुआ है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके की वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो दोनों से नवाज देना, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखते रहिए सज्जाद निजामी ब्लॉग, आपका अपना यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।